Hi guys, welcome back to my YouTube channel Gauri Styles, and as you all know, summers are right here. So I've got a new foundation for myself, which is Anastasia Beverly Hills Impeccable Blurring Second Skin Matte Foundation. This is how the outer packaging looks like, and I'm super duper excited to review it in front of you all. Just a spoiler, it's not my first impressions. I've already tried it on myself, and today I'll be sharing my full-fledged review about this foundation. And guys, this is my most expensive purchase as well in terms of foundation. It is expensive than Charlotte Tilbury foundation. So keep on watching this video to know more about this foundation, whether it's worth it or not. So without wasting any further ado, let's get started. Okay, let's begin with my hashtag HCTMs. It stands for hairs. So I'll be pinning my hairs with the same claw clips which I use in every video of mine. And my face is already cleansed. It's time for toner. For that, I'll be using my very favorite Dalba First Spray Serum. It's a very good toner. And especially if you want glow on your face, then add this to your makeup routine and you are gonna see noticeable changes. Okay guys, I've purchased few new products and today I'll be incorporating them also in this video. So first I have got this Prosh Silk Blur Moisturizing Primer, and this is the new packaging. Earlier it used to come in a glass jar, and this is my first time I'll be trying this product, and I thought of incorporating this in today's video only because I received the parcel today, and yes, I purchased it with my own money. And the second is Poshka the Showstopper palette. I have heard great reviews about this palette. Haven't tried it yet, but today I'll be trying it in front of you all. This is what the Kali theory looks like. I've already swatched them because I'm crazy like that. Whenever I receive any new product, be it be any product, I first watch it and then I review and do first impressions on my face and everything. But like I just can't keep calm. I just can't hold my excitement to swatch it in front of video, or when I'm stepping out, I want to swatch it as and when I receive the product. So this is my bad habit, or you can say a crazy habit of me. Okay, let's start with the moisturizer, as I've already toned my face. And today I'll be using this moisturizer. I have taken this much amount. Okay, it's very soft on my face. And it has a smoothing effect to your face. Like you can feel that it has primer properties as well because it smoothens out your skin texture, which I can already feel just while applying this product. And I think it's a great product because it's easily absorbed in my skin, as you can see. And it has a very mild fragrance, and the fragrance is also good. I don't mind fragrance in my products, so this is not a bummer for me. I can feel that my skin is much more softer and it appears smoother to me. So yeah, this product is a great product and I'm very much impressed with this product. In case if you are looking for good affordable moisturizer for yourself, I am calling it moisturizer even though it retails for rupees 650, just because Prosh runs some amazing offers on their products on their website. I got it for 320 something because I got it on 55% off. So that is why I'm calling it an affordable moisturizer. Guys, you can easily skip on your primer after applying this product because it has priming properties as well. But in case if you want to use a primer, then you can consider getting Elf Ke Hello Grip Primer, as summers are right here, and you need a gripping primer so that makeup stays on your face. गर्मियों में तो बुरा हाल हो जाता है, एंड अगर कोई अच्छा प्राइमर ना लगाओ देन तो मेकअप बिल्कुल ऐसे उतरता है जैसे कि लाइक जो इतनी मेहनत करी हो ना, एंड धूप में जाके छपाक छपाक सब वेस्ट हो गई. तो प्राइमर मत स्किप करो, एंड मैं बहुत जल्दी अपना समर मेकअप ट्यूटोरियल भी लेके आने वाली हूँ, तो उसको देखना मत भूलना. एंड उसमें मैं सारे हैक्स बताऊंगी कैसे आप अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हो, एंड कैसे आपको समर्स में मेकअप टेक्निक्स यूज करनी चाहिए ताकि आपका बेस अच्छे से लगा रहे एंड ह्यूमिडिटी को भी सर्वाइव कर पाए. Okay, it's time for the color corrector. For that, I'll be using my PAC Take Cover Concealer in the shade Rusty Orange. It's a very good color corrector. In case if you're looking for a good orange color corrector for yourself, then you can consider getting this one because it's not drying at all and you would get some room for blending it out, and it's quite reasonable as well. I prefer this one over my Huda Beauty color corrector. Okay. And I prefer blending my color corrector with my index finger. I like it that way, though it is advisable to not blend any form of concealer with your index finger because it has the most amount of pressure. But I prefer blending my color corrector with my index finger. Okay, now I'll be camouflaging this corrector with a darker shade of concealer. For that, I'll be using my Huda Beauty concealer in the shade Candid Ginger. And this is a very good dark shade concealer. You can use it on medium to dark skin tone people and even on fair skin tone people so as to neutralize the color corrector. गाइस, मैं हमेशा फाउंडेशन लगाने से पहले अपने अंडर आइज की कंसीलिंग एंड करेक्टिंग कर लेती हूँ, तो मैं पहले वही कर रही हूँ एंड उसके बाद में फाउंडेशन लगा के दिखाऊंगी ताकि जैसे मैं अपना रूटीन करती हूँ ना, बिल्कुल ट्रू टू माई रूटीन मैं आपको दिखा रही हूँ एंड उससे आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होगी कि ये फाउंडेशन कैसा परफॉर्म करेगा. ओके, मैं अब अपना ये कंसीलर भी ब्लेंड कर दूंगी विद माई डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर एंड हियर आई एम यूजिंग फॉरएवर 52 का ब्यूटी ब्लेंडर.
Okay, now it's time to review the foundation for which you guys must be waiting. And you can see this is how the outer packaging looks like, which is pretty basic. It says Anastasia Beverly Hills Impeccable Blurring Second Skin Matte Foundation. You get 35 ml of quantity in this foundation, and the price is rupees 5,200, which is technically my most expensive foundation till now. And it has blurring effect, soft matte effect. It gives you a second skin-like finish. It is weightless, moisturizing, hydrating, natural, long-lasting, non-drying, no settling, dermatologist tested, non-comedogenic, vegan, and cruelty-free. Okay, there's so much claims about this foundation. Let me show you how the foundation looks from inside. From inside, the foundation looks like this, which is pretty basic yet elegant and very classy, and it looks very luxurious as well. You can see it has a frosted glass packaging, and you get a golden cap, and here is the detailing of the Anastasia logo, which looks absolutely luxurious. And once you open it, you get a pump dispenser. So let me take out a pump, a two. I have taken out two pumps in total, as you can see. Here I'm using the shade 3N, and this shade matches me to perfection. Though I bought it online only, and I was very skeptical that whether the shade would match me or not, but it matched me to perfection. It just looks like my skin, but better. And here I've dotted this foundation all over my face, and I'll be blending on this side with a beauty blender and on this side with a brush. Here I'm taking the same beauty blender. Okay, it has a strong fragrance which smells like chemically, but once you will blend the foundation after a minute or two, it would all vanish. So I don't mind the fragrance, but the fragrance is quite strong. Just look at the finish of this foundation, how impeccable it looks, as the name says. Guys, I've already tried and tested this foundation a couple of times, and I can say I honestly love this foundation to the core. It gives such a blurring matte effect to my face, and this foundation is pretty long lasting as well. It lasts a long time. I have done few makeups with this foundation, and it lasted pretty well on my face. गाइस इसका इफेक्ट देखो कितना प्यारा आया है. इट्स सच अ नाइस सॉफ्ट मैट ब्लरिंग सेकंड स्किन फाउंडेशन, एंड इट स्टेज ट्रू टू इट्स क्लेम. जैसे भी उसने क्लेम करा है ना, बिल्कुल वैसे ही लगता है. ऐसा लगता है किसी ने मेरे फेस पे फिल्टर लगा दिया. एग्जैक्ट मैच है मेरे फेस से. कितनी अच्छी फिनिश है. बहुत आसानी से ये फाउंडेशन ब्लेंड भी हो जाता है, कहीं भी ड्राई पैची केकी नहीं होता है, एंड कहीं से पिल भी नहीं होता है. बहुत अच्छी फिनिश है, एंड मुझे इस फाउंडेशन से प्यार हो गया. ऑनेस्टली आई जस्ट लव दिस फाउंडेशन, एंड मुझे ये नहीं समझ में आता व्हाई मेनी पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस फाउंडेशन. इट डिजर्व्स ऑल दी हाइप. इसकी कवरेज देखो, इट गिव्स यू मीडियम टू फुल कवरेज. ये मैंने अभी एक लेयर ही लगाई है, बट अगर मैं इसमें सेकंड लेयर भी लगा दूंगी तो और भी ज्यादा फुल कवरेज हो जाएगी. बट आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कवरेज. बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई, बट दी ओनली कॉन which I have experienced with this foundation is it oxidizes. Yes, guys, this foundation oxidizes, but you can make it work for yourself. How? Just lock it up with a powder. उसके बाद वो बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होता. ऑक्सीडाइजेशन का प्रोसेस कैसा होता है कि जब आपके फेस पे जो प्रोडक्ट लगा होता है वो एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से कॉन्टैक्ट में आता है, और उसके बाद उसका कलर डार्क होने लगता है. बट अगर आप पाउडर से लॉक कर दोगे, उसके बाद इसकी ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस भी रुक जाएगी. तो यू कैन वर्क इट फॉर योरसेल्फ, एंड स्पेशली समर्स में तो कोई भी अपना फाउंडेशन ऐसे लगा के नहीं जाता है. एवरीबडी लॉक, एंड एवरीबडी शुड लॉक देयर मेकअप विद द हेल्प ऑफ अ पाउडर. Okay, here I'm using a new foundation brush, which is PAC S02. This is how the shape looks like. A new foundation brush for a new foundation. मैं साइड बाय साइड दोनों ही साइड आपको दिखाऊंगी. ब्रश से ब्लेंड करने में कवरेज थोड़ी सी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी ब्यूटी ब्लेंडर, बट दिस द यूनिवर्सल फैक्ट. अगर आप कोई भी फाउंडेशन अपने ब्रश से ब्लेंड करोगे तो ऑब्वियसली यू वुड गेट मच मोर कवरेज एज अपोज टू अ ब्यूटी ब्लेंडर. बट दोनों ही साइड कवरेज सीमलेस आई है, बहुत अच्छी. आप देखो कितनी अच्छा, बिल्कुल फिल्टर जैसा इफेक्ट हो रहा है. बिल्कुल अगर कोई इम्परफेक्शन है वो ब्लर्ड आउट हो जाएगी. गाइस, आई डोंट हैव ओपन पोर्स ऑन माय फेस, बट अगर आपके होंगे ऐसा नहीं होगा कि पूरे ढक जाएंगे, पूरे ब्लर्ड आउट हो जाएंगे. बट हाँ, जो उनकी अपीयरेंस होती है आफ्टर मेकअप, वो काफी हद तक एक ब्लर्ड इफेक्ट मिलेगा. बहुत अच्छा है, सॉफ्ट मैट फिनिश है. माय स्किन इज स्टिल लुकिंग ड्यूई, बट नॉट ओवरली ड्यूई, एंड स्पेशली इन दिस समर्स आई डोंट लाइक ओवरली ड्यूई मेकअप ऑन माई सेल्फ. मुझे थोड़ा मैट ही मेकअप पसंद है. इनफैक्ट मुझे तो ओवर मैट मेकअप पसंद है. देखो ये ऑक्सीडाइज कर गया, थोड़ा डार्क शेड का हो गया, एंड मेरे फेस पे भी ऑक्सीडाइज कर गया. देखो अभी तक ये मुझे परफेक्ट मैच कर रहा था, बट इस साइड अब मतलब मेरा पूरा फेस थोड़ा सा डार्क लग रहा है कंपेयर टू माय नेक. बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज द ओनली कॉन अबाउट दिस फाउंडेशन, एंड यू कैन मेक इट वर्क बाय लॉकिंग इट विद अ पाउडर. एंड अभी मैं हाईलाइटिंग, कॉन्टोरिंग एवरीथिंग करूंगी तो भी मेरा वर्क हो जाएगा. बट गाइज ऑनेस्टली आई जस्ट लव दिस फाउंडेशन. बहुत अच्छा फाउंडेशन है. एंड इफ यू वुड से कि वुड आई प्रेफर दिस फाउंडेशन ओवर चार्लोट टिलबरी और नार्स, ओवर नार्स, यस, क्योंकि समर्स में नार्स थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, स्पेशली फॉर ऑयली स्किन पीपल. कॉम्बिनेशन है जैसे मेरी स्किन, तो मेरी नोज से भी थोड़ा वेयर ऑफ हो जाता है. चार्लोट टिलबरी बहुत अच्छा फाउंडेशन है. यू कैन से
कि शार्लेट टिलबरी से थोड़ा-सा अगर आपको ब्लरिंग इफेक्ट चाहिए एंड थोड़ी-सी ड्यू इफेक्ट चाहिए, तो आप ये वाला फाउंडेशन ले सकते हो। बट ऑफ कोर्स शार्लेट टिलबरी, अगर आपको वो लेना है, आप वो भी ले सकते हो। बट अगर आप मेरी पर्सनल चॉइस कहोगे तो आई वुड प्रेफर दिस फाउंडेशन। ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है। लाइक इसके लगाने के बाद ना सच्ची में फेस बहुत स्मूदन आउट लगता है। तो जितना मेरे हाथ में बच गया है, मैं उसे भी लेकर डैब-डैब करके लगा दूँगी ऑन माय फेस बिकॉज़ व्हाई टू वेस्ट सच एन एक्सपेंसिव फाउंडेशन। अगर आप मुझसे ये ब्रश का रिव्यू माँगोगे तो मैं बता दूँ ये ब्रश भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से इसने मेरे फाउंडेशन को ब्लेंड कर दिया है। दिस इज़ पैक का S02 व्हिच इज़ देयर न्यू लॉन्च। इन्होंने अब न्यू लॉन्च के ब्रशेज़ ऐसे लॉन्च करे हैं। आप इनका हैंडल देखो, इसका फेरूल देखो, दोनों सेम ही कलर के हैं व्हिच इज़ डल गोल्ड कलर एंड बहुत ही सुंदर, बहुत लग्जूरियस ब्रशेज़ हैं एंड इसके ब्रिसल्स भी टाइटली पैक्ड हैं। बहुत अच्छे से ये प्रोडक्ट को ब्लेंड कर रहे हैं एंड कहीं भी ब्रिसल्स का स्ट्रोक लीव नहीं करा है एंड बहुत क्विक है इसे ब्लेंड करना भी एंड दीज़ आर वेरी सॉफ्ट ऑन द फेस एज़ वेल। बट एक बारी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से गो ओवर कर लूँगी ताकि अगर कोई भी एक्सेस प्रोडक्ट मेरे फेस पे लगा रह गया है तो वो भी इससे हट जाता है। Okay, it's time to cream contour my face. For that, I'll be using Fenty Beauty Contour Stick in the shade Espresso. ये contour stick बहुत ज़्यादा अच्छी है and इससे contour करना भी बहुत quick हो जाता है and today I'll be contouring my face heavily because I want a very snatched look on myself. आज मैं बहुत प्यारा सा आपको सॉफ्ट मेकअप सिखाऊंगी जो आप पार्टीज में कर सकते हो या लाइक फेयरवेल आ रही है, लोगों की फ्रेशर्स आ रही है, आप उसमें भी कर सकते हो। बहुत प्यारा सा लुक सिखाऊंगी एंड बहुत इजी भी होगा। एंड आज हम मोस्टली लुक करेंगे ये प्रॉश के पैलेट से। आई रिसीव्ड इट टुडे इटसेल्फ। आई एम सुपर एक्साइटेड टू ट्राई दिस पैलेट आउट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल ऑब्वियसली। गाइस मेरे पास जो भी प्रोडक्ट आ रहा होता है ना एंड अगर मुझे पता होता है स्पेशली मुझे उस दिन वीडियो बनानी है तो मैं वो प्रोडक्ट कैसे ना कैसे करके उस वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर ही देती हूँ क्योंकि आई एम जस्ट क्रेजी अबाउट मेकअप। मुझसे नहीं रहा जाता कि मैं वेट करूँ दोबारा फुल फ्लेश वीडियो बनाऊँ तब दिखाऊँ, ऐसा नहीं होता। चाहे मैं स्पॉइलर दे दूँ कुछ कर दूँ बट मैं इनकॉर्पोरेट कर देती हूँ वीडियो में कैसे ना कैसे, प्लग इन कर ही देती हूँ। मैं सॉफ्ट लॉन्च कर देती हूँ। आजकल के टर्म्स में बोलूँ तो मैं सॉफ्ट लॉन्च कर देती हूँ प्रोडक्ट को। खैर मैं तो बहुत इम्पेशेंट हूँ, मैं तो हार्ड लॉन्च ही कर देती हूँ। मैं तो प्रॉपर लगा के दिखा भी देती हूँ, मैंने रिव्यू भी दे देती हूँ। जैसे कि आज ये मैंने फाउंडेशन ब्रश भी आज ही रिसीव किया एंड नन ऑफ दीज़ प्रोडक्ट्स आर सेंट बाय ब्रांड। आई हैव परचेज्ड इट ऑल विद माय ओन हार्ड एंड मनी जस्ट टू गिव यू अ डिस्क्लेमर। तो इसको भी मैंने हार्ड लॉन्च कर दिया। बहुत अच्छे से मैं अपनी जॉ लाइन भी कंटूर कर लूँगी। गाइस अगर आपको सॉफ्ट मेकअप भी करना है ना देन आल्सो डोंट स्किप योर कंटूरिंग। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार कंटूरिंग से मेरा फेस मडी लगने लगता है, आप लिक्विड कंटूर कर लो, क्रीम कंटूर कर लो एंड आप पाउडर कंटूर अवॉइड भी कर सकते हो बिकॉज़ लिक्विड कंटूर से काफ़ी हद तक आपके फेस में डायमेंशन क्रिएट हो जाती है। बट डोंट स्किप कंटूरिंग एट ऑल। बिल्कुल उसे अननेसेसरी स्टेप सोच के या मडी और एशी सोच के इसे छोड़ मत दो, करो। चाहे आप पाउडर करो या आप लिक्विड करो एंड दोनों करो तो वाह भाई वाह, मतलब नथिंग बेटर देन दैट। Okay, it's time for the liquid blush. For that, I'll be using Corrector Cheek Rope Liquid Blush, and the shade is 001 Beam. And there's a very beautiful highlighting blush. इसको लगाने के बाद ना you can skip your highlighter as well, क्योंकि एक बहुत अच्छा सा dewy blusher है and बहुत overly pigmented भी नहीं है, बट बहुत ब्यूटीफुल है। स्पेशली नो मेकअप डेज में तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। मेकअप के ऊपर आपको कपल ऑफ टाइम्स इसे लेयर करना पड़ता है बट नो मेकअप डेज में बहुत सुंदर लगता है। दिस माय गो टू ब्लश व्हेन आई एम नॉट वेयरिंग एनी मेकअप। देखो अभी मेकअप के ऊपर ना ये इतना दिख नहीं रहा होगा बिकॉज इट हैज अ वेरी शेयर फिनिश, बट विदाउट मेकअप ये बहुत ज्यादा दिखता है। तो मुझे थोड़ा सा ऐसे लेयर करना पड़ेगा। लेट मी अप्लाई लिटिल बिट मोर। स्पेशली जब सॉफ्ट क्यूट मेकअप लुक करने हो आपको तो डोंट स्किप अप्लाइंग द ब्लशर ऑन योर नोज, ऑन योर चीक्स। इससे ना बहुत अच्छा एक क्यूट सा इफेक्ट आता है, एक गर्ली गर्ल वाइब आती है। तो जब भी आपको सॉफ्ट इंडियन मेकअप लुक्स करने होते हैं ना देन डोंट स्किप अप्लाइंग योर ब्लशर ऑन द टिप ऑफ योर नोज एंड ऑन योर चिन। जिनको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा लिक्विड ब्लश लगा देते हैं, क्लाउन लाइक फेस होने लगता है, वो लोग ये ब्लशर ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा सा है, ओवरली पिगमेंटेड भी नहीं है, बहुत नेचुरल इफेक्ट देता है एंड बहुत ड्यूई फिनिश है इस ब्लशर की। दिस ब्लशर इज अ वेरी गुड ब्लशर। Okay, it's time to highlight my face. For that, I'll be using Huda Beauty Concealer again, and the shade is Marshmallow 1.3G, and I'll be using this to highlight my face. And मैं बहुत अच्छे से highlighting भी करूँगी ताकि मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा लिफ्टेड अप लगे एंड और ज़्यादा ब्राइट लगे, स्पेशली आफ्टर अप्लाइंग दिस फाउंडेशन। कि मेरे काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो गया है तो मेरी स्किन इस टाइम पे काफ़ी डल लग रही है, डल इन द सेंस कि डार्क लग रही है, इसलिए मैं अच्छे से हाईलाइटिंग कर लूँगी। गाइस जैसा अगर आप फुल फ्लैश मेकअप कर रहे हो एंड आपने शेड लिया, लाइक एग्जैक्ट शेड ले लिया अपने मैच का एंड आपके फेस पे अगर ये ऑक्सीडाइज कर जाए तो अच्छे से अपनी क्रीम हाईलाइटिंग करो, उसके बाद पाउडर सेटिंग करो, सब कुछ बहुत सुंदर लगेगा। एनीवेज हम लोग करते तो है ही है हमेशा क्रीम हाईलाइटिंग, लिक्विड हाईलाइटिंग, तो डरने की बात नहीं है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट आपके पे ऑक्सीडाइज भी हो जाता है, यू शुड नो दी टेक्निक्स टू मेक द प्रोडक्ट वर्क ऑन योर फेस।
मैं क्रीम नोज कॉन्टोरिंग एंड क्रीम हाइलाइटिंग अवॉइड करती हूँ बिकॉज आई हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन टाइप एंड द मोर आई अप्लाई द प्रोडक्ट ऑन दोज एरियाज द मोर इट वुड स्लिप एंड स्लाइड अवे। एंड ब्यूटी ब्लेंडर की टिप से मैं अंडर आइज के नीचे भी बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग कर दूंगी। गाइस जब भी आप अपने अंडर आई के नीचे कंसीलर लगाओ ना, हाइलाइटिंग कंसीलर, मेक श्योर टू ब्लेंड द अदर एरियाज फर्स्ट एंड देन ब्लेंड योर अंडर आई कंसीलर इन द लास्ट। इससे क्या होता है, कंसीलर को ना आपको ज़्यादा कवरेज मिल जाती है बिकॉज वो प्रेस कर रहा होता है एंड थोड़ा टैकी हो जाता है। सो दिस a great tip if you want to maximize the coverage out of your concealer. So let it sit on your face for good 1 minute and then blend it out and you'll get the maximum coverage out of your concealer. But make sure your concealer is a hydrating concealer. अगर ये आप ड्राइंग कंसीलर के साथ कर दोगे लाइक टार्ट शेप टेप, देन तो उसको ब्लेंड करना इतना मुश्किल हो जाएगा कि आपको ब्यूटी ब्लेंडर से रिमूव करना पड़ेगा कंसीलर। So make sure you are using a hydrating concealer for this step. Before powder setting my face, I am removing all the excess concealer under my eyes because I crease a lot from there, from under my eyes एंड फ्रॉम अबव माई आईलिड एज वेल। यहाँ पे मेरी बहुत क्रीजिंग होती है तो मैं इसकी वजह से क्यू टिप से बहुत अच्छे से प्रोडक्ट हटा दूंगी। थोड़ा सा स्माइल लाइन से भी हटा दूंगी क्योंकि यहाँ से भी मेरी क्रीजिंग हो जाती है एंड किसी किसी की होती है फोरहेड से भी हो जाती है, तो आप वहाँ से भी हटा सकते हो। देन मेक श्योर टू गो ओवर विद योर ब्यूटी ब्लेंडर। उससे ऐसा नहीं होता कि जो आपने इतनी सारी कंसीलिंग करेक्टिंग करी वो हट जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस एक्सेस प्रोडक्ट ही हटता है ताकि आपके क्रीजेस ना पड़े। गाइस जो आपके नेचुरल क्रीजेस हैं वो तो कोई नहीं हटा सकता, बट जैसे मेकअप के बाद ओवरली क्रीजेस पड़ने लगती है ना, वो फटने लगता है, वहां से वो अलग ही दिखता है कि चीजें फट रही हैं, वो नहीं होता वंस यू विल फॉलो दिस स्टेप। Now I'll be setting my face with MAC Studio Fix Compact Powder and the shade is NC35, which is darker to my skin tone, but I use it just to set my under eyes ताकि कोई grey cast ना पड़े। I discovered this step very recently कि अगर मैं थोड़ा सा dark shade of compact powder से अपने under eye set करती हूँ तो कोई भी grey cast नहीं पड़ता। No matter मैं कुछ भी टेक्निक कर रही थी, कोई भी पिंक पाउडर वगैरह कुछ भी यूज कर रही थी, तब भी मेरे को ना थोड़ा ग्रे कास्ट पड़ रहा था। बट एवर सिंस आई हैव फॉलोड दिस टेक्निक मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरे को बिल्कुल कोई ग्रे कास्ट नहीं पड़ता एंड बहुत सीमलेस, बहुत अच्छी मेरी लाइक अंडर आइज लगती है। आई जस्ट हाईली रिकमेंड दिस टिप। अगर आप ये सारी टेक्निक भी तो ठीक कर रहे हो बट स्टिल यू फील कि नहीं थोड़ी ग्रे कास्ट आ रही है, देन सेट योर फेस विद अ डार्कर शेड ऑफ कॉम्पैक्ट पाउडर फर्स्ट एंड देन फॉलो इट विद अ लूज पाउडर एंड आप लोग चेक करके देखना कि आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो मैं पिज्जा पफ से ही ले लेती हूँ। हेयर आई एम यूजिंग क्रॉश का पिज्जा पफ। वंस अगेन आई विल गो ओवर विद माय ब्यूटी ब्लेंडर क्योंकि जो इतनी बातें करी ना उस दौरान भी पीसेस आ सकती हैं। एंड हेयर आई एम सेटिंग इट विद क्रॉश का पिज्जा पफ। आई एम सेटिंग माय आईलिड एज वेल। मैं सिर्फ अपनी अंडर आइज और आईलिड ही सेट करती हूँ इस पाउडर से एंड देन आई विल गो ओवर विद अ लूज पाउडर टू सेट माय एंटायर फेस। यू कैन सी अभी से कितना सीमलेस लग रहा है। अभी तो लूज पाउडर से भी सेट करूंगी एंड देन पाउडर हाइलाइटिंग भी करूंगी तो और भी ज्यादा फ्लॉलेस लगता है। For loose powder today, I'll be using Huda Beauty Easy Bake Loose Powder in the shade Cupcake. ये देखो, ये बहुत ही अच्छा लूज पाउडर है। इट्स वेरी फाइनली मिल्ड एंड स्पेशली समर्स के लिए तो ये लूज पाउडर बहुत ही अच्छा है बिकॉज इससे ना आपका फेस काफी हद तक मैट हो जाता है एंड आपका मेकअप काफी हद तक लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। समर्स में सबका ही इशू होता है कि मेकअप यहाँ से हट गया, वहां से हट गया, यहाँ से ऑयल आ गया, वहां से आ गए। देखो सब कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चमत्कार ही कर देगा, बट हाँ हो सकता है कि उनकी अपीयरेंस को या उनके टाइम को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दे, तो उसमें ये प्रोडक्ट बहुत हेल्प करता है। एंड मैं ना अपनी अंडर आइज को भी सेट कर लूंगी इसी लूज पाउडर से भी। आप लोग देख ही पा रहे होंगे कितना फ्लॉलेस लग रहा है अभी से ही। Okay, for powder contouring, I'll be using Corrector Face Palette. And this is a very good contour palette, comes in a tin packaging, which makes it very secure. And here you get 5 shades of contour, 2 shades of face powder, and one a face highlighter. So I'll be using this palette only to contour my entire face. Here I'll be taking these 2 shades, I'll just off the excess, and then I'll just contour my face. इनको पिक करना है, just rest off the excess, and then go over on your contour areas, which is hollows of your cheeks, on your forehead. फोरहेड की लाइन आपको अपने हेयर लाइन में मर्ज करनी है ताकि कुछ अलग सा ना लगे एंड सब कुछ सीमलेस लगे। गाइस मेकअप की बेस्ट पार्ट यही होती है कि पता ही ना चले मेकअप कहाँ से शुरू हुआ एंड कहाँ खत्म हो गया। अगर पता चल रहा है कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ खत्म हो रहा है, देन वो मेकअप अच्छा मेकअप नहीं कहलाया जाता है। एंड देन आई विल टेक द डार्केस्ट शेड फ्रॉम दिस पैलेट टू कंटूर माय जॉ लाइन। जॉ लाइन का कंटूर आपका आपकी जॉ लाइन से ऊपर नहीं आना चाहिए, उससे नीचे नीचे ही होना चाहिए। एंड जो भी मेरे ब्रश में थोड़ा सा रह गया मैं इस तरफ लगा दूंगी अपने फेस के। एंड हर चीज़ फाउंडेशन के ऊपर ना बहुत परफेक्टली जा रही थी, जैसे सारे फाउंडेशन के ऊपर जाता है, तो कहीं भी आपको कोई भी परेशानी नहीं आती इस फाउंडेशन के साथ, जस्ट लाइक एनी अदर फाउंडेशन। जो फाउंडेशन का इफेक्ट था। नाउ आई विल बी कंटूरिंग माय नोज एंड उसके लिए मैंने एक आई शैडो ब्रश ही ले लिया है
जैसे आप देखो फाउंडेशन के ऊपर हर चीज़ बहुत परफेक्टली जा रही थी। लाइक जैसे कंसीलर की ब्लेंडिंग करी, उसके बाद देखो मेरा कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल इवन टोन लगने लगा, इनफैक्ट थोड़ा ब्राइटर ही लगने लगा। तो जो ऑक्सीडाइजेशन की प्रॉब्लम थी वो भी ऐसे सॉल्व हो जाती है कि एक लाइटर शेड ऑफ कंसीलर लो, फेस पे हाइलाइटिंग कर लो या इमीडिएटली जैसी फाउंडेशन लगाया है वैसे ही उसको आप पाउडर से सेट कर लो। एंड हर चीज़ देखो कितनी सीमलेस लग रही है। ये फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। एंड इफेक्ट देखो लाइक बिल्कुल इतना सीमलेस जैसे एयर ब्रश वाली जो फिनिश होती है ना, बिल्कुल वैसा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। लाइक आई हाईली रिकमेंड दिस फाउंडेशन। बहुत अच्छा फाउंडेशन है। आई एम जनरली शॉक्ड कि व्हाई मेनी पीपल डोंट टॉक अबाउट दिस फाउंडेशन। इट डिजर्व्स ऑल द हाइप। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू लग्जूरियस गुड क्वालिटी फाउंडेशन फॉर योरसेल्फ, देन कंसिडर गेटिंग दिस वन एंड दिस वन इज नॉट गोना डिसअपॉइंट यू। अगर आपको लगे नोज कंटूरिंग थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, देन बस अपने ब्यूटी ब्लेंडर को ऐसे गोबर कर देना बहुत लाइट हाथों से। अगर लगे तो, नहीं तो यू कैन स्किप दिस स्टेप। Okay, it's time for the powder blusher. For that, I'll be using Spotlight blush and the shade name is Vanity. It's a very nice soft pink blusher. ये बहुत प्यारा आपका बेबी पिंक ब्लश है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्यारा सा ग्लो भी ऐड करता है एज इट इज अ इल्यूमिनेटिंग ब्लशर। लगा के दिखाती हूँ, अच्छे से लो एंड देन अप्लाई इट एज इट इज। ये ओवरली पिगमेंटेड भी नहीं है कि आपका एक ब्लॉच बन जाए, बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। एंड लुक एट दी कलर, स्पेशली सॉफ्ट मेकअप करने के लिए, डे टाइम के मेकअप करने के लिए तो ये बहुत परफेक्ट है। इसके ऊपर यू कैन स्किप अप्लाइंग योर हाइलाइटर इन केस इफ यू आर नॉट अ फैन ऑफ हेवी हाइलाइटर्स, क्योंकि इटसेल्फ एक इल्यूमिनेटिंग ब्लशर है। सेम मैं अपनी दूसरी चीक पे भी कर दूंगी। देखो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत बिल्कुल गर्ली गर्ली वाइब लग रही है, बिल्कुल भी ओवर द टॉप नहीं लग रहा। एंड आप देखो कि मैं बिल्कुल भी एक्सेस भी डस्ट ऑफ नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही लगा रही हूँ। इट्स नॉट हेल्प पिगमेंटेड, तो ऐसा भी नहीं है कि ब्लॉच पड़ जाएगा, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रही है। एंड द कलर इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। एंड फॉर अ चेंज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम नॉट मिक्सिंग माई ब्लशेस, नहीं तो मैं हमेशा एक ब्रश नहीं लगाती हूँ, मैं 2-3 मिक्स करके लगाती हूँ। टिप ऑफ द नोज में भी लगा दिया। देखो कितना अच्छा सा एक इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट है, इससे आपको पता चल रहा होगा कि इसमें हाइलाइटर भी मिक्स है। बहुत सॉफ्ट है, कोई आपको चंकी पार्टिकल्स नहीं दिखेगा। इट्स जस्ट दैट इट गिव्स यू अ ग्लो फ्रॉम विद इन काइंड ऑफ ग्लो। एंड बहनों जिनको बहुत ज्यादा ब्लशर लगाने का शौक है ना, उनके भी अरमान पूरे हो जाएंगे। आप भर भर के लगाओ, डस्ट ऑफ भी मत करो एक्सेस, स्टिल ये बहुत नेचुरल लगने वाला है, जैसे आप देख सकते हो मेरे ऊपर लग रहा है। Okay, it's time for the brows. For that, I'll be using my Anastasia Brow Powder Duo and the shade is dark brown. This is how the powder looks from inside. ये बहुत अच्छा है to fill your brows and ये बहुत natural look भी देता है। तो आज मैं softer ethnic makeup look ही करूँगी, तो उसमें बहुत अच्छे से जाएगा। Just take a spoolie and go over on your brows. Then मैं ये दोनों ही powder mix कर लेती हूँ, but ज़्यादा quantity में ये dark shade की रखती हूँ। एंड मैं ना आउटर 3/4 पार्ट से स्टार्ट करती हूँ अपने ब्राउज को फिल करना। आगे का देखो मैं 1/4 पार्ट छोड़ ही दे रही हूँ, क्योंकि उसको मैं बस पूरी से ही ब्रश कर लूँगी। बस थोड़ी-सी एक लाइन ड्रॉ करूँगी नीचे एंड दैट टू विद वेरी लाइट हैंड्स एंड इसी से हम फिल भी कर लेंगे। एंड गो ओवर विद माय स्पूली ताकि प्रोडक्ट बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बहुत इवन हो जाए। ओके, लेट मी डू माय अदर ब्राउ एज़ वेल। एंड जो लाइट शेड है ना, उससे बस मैं आगे भी फिल कर वर्टिकली थोड़े से बस स्ट्रोक्स ड्रॉ कर दूँ। दैट्स इट एंड यू कैन सी हाउ प्रिटी एंड नेचुरल माय ब्राउज आर लुकिंग। बहुत ही सुंदर लग रही है। Okay guys, let's start with the eye makeup and I'm super duper excited to try Roche Beauty the Showstopper eyeshadow palette and इसकी कलर थ्योरी भी बहुत प्यारी लग रही है। आज का मेकअप बहुत सॉफ्ट रखेंगे, बहुत नेचुरल रखेंगे। So let's get started. First I am picking a small smudger brush. ऐसा दिखता है एक small smudger brush and उससे मैं ये dark के shade of brown pick कर रही हूँ। The name is Savage. ये वाला आप देखो। It's a very beautiful. I think it's a maroon brown shade. Yep. And इसको लगाऊंगी बहुत close to my lash line, upper lash line. ओके, मैंने बस एक-एक बार इसका हैंड स्वॉच ही करा है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल ऑन माय आईज़ एंड जैसे-जैसे मैं ये कलर पिक कर रही हूँ ना, मैं बता पा रही हूँ, इसमें बिल्कुल भी ना किक बैक नहीं है। किक बैक क्या होता है? जैसे आप कलर पिक करते हो, तो जो आप एक्सेस पाउडर देखते हो ना, जो वो झड़ता रहता है, वो नहीं है एंड ये ना फॉल आउट भी नहीं हो रहा है इस प्रोडक्ट का, बट स्टिल बहुत अच्छे से ये ब्लेंड भी हो रहा है एंड बहुत कलर अच्छे से शो भी हो रहा है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है इस पैलेट का। लाइक आई एम जेन्युइनली इम्प्रेस्ड। ये एक प्लम ब्राउन शेड है, बहुत सुंदर है। अगर स्पेशली अगर आपको ना सॉफ्ट लुक करना है, तो पहले आप एक डार्क शेड लगा लो एक स्मॉल स्मजर ब्रश से या पेंसिल ब्रश से, जिससे भी आपको कन्वीनियंट लगे एंड इसे ना अच्छे से लगा के स्मच स्मच कर लो। उसके बाद दिखाती हूँ क्या करना है। बहुत ही ईज़ी मेकअप करेंगे, कुछ भी ज़्यादा कलाकृति नहीं करेंगे आज के मेकअप में। नेक्स्ट आई हैव टेकन अ ब्लेंडिंग ब्रश एंड आई विल बी मिक्सिंग द शेड हाई प्रोफाइल along with the shade Vigorous
हाई प्रोफाइल विद विगरस। हाई प्रोफाइल एक ब्राउन शेड है एंड विगरस एक पिंक ब्राउन शेड है। दोनों को मिक्स करके मैं पूरी आईलिड में ऐसे डैब डैब करके पहले कलर डिपॉजिट कर लूंगी। एंड जो हमने ये स्पेशली पहले जो कलर लगाया था ना स्मच स्मच करके, उसके ऊपर भी लगाऊंगी ये। बहुत अच्छे से हम कर लेंगे इसको डिपॉजिट एंड देन आई जस्ट ब्लेंड विद माय ब्लेंडिंग ब्रश। इससे क्या होता है कि आपकी लैश लाइन अच्छे से डिफाइन भी हो जाती है, बट एक बहुत सॉफ्ट लुक ही होता है, लाइक डिफाइंड भी हो रही है बट एट द सेम टाइम कुछ हार्श भी नहीं लग रही है। तो पहले डार्क शेड लगा लो अपनी लैश लाइन के बहुत क्लोज क्लोज, एंड देन कोई भी कलर ले लो जो आपको अच्छे लगते हो, उसके ऊपर टैप टैप करके इनकी इंटेंसिटी बिल्ड करो एंड देन जस्ट ब्लेंड इट आउट इन राउंड सर्कुलर मोशन अलॉन्ग विद विजुअल वाइपर मोशन। ओके, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत नेचुरल लग रहा है, जस्ट लव इट। दूसरी आई में भी मैं सेम कर लूंगी। गाइस, इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है, कोई भी फॉल आउट नहीं हो रहा। एंड माइंड यू, मैंने अपने अंडर आईज में कोई भी एक्सेस लूज पाउडर नहीं लगा रखा है, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी इसका फॉल आउट होगा नहीं होगा। टू माय सरप्राइज कुछ भी फॉल आउट नहीं हो रहा है, व्हिच हैज रियली रियली इम्प्रेस्ड मी। बहुत अच्छा लगता है अगर आपके आई शैडोज में फॉल आउट ना हो। उससे क्या होता है, सबसे अच्छी बात ये होती है अगर आई शैडो का फॉल आउट ना हो, या पहले अपना बेस मेकअप कर लो आराम से एंड देन आप अपना आई मेकअप कर सकते हो। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं आई मेकअप पहले करना, ताकि कुछ भी फॉल आउट वगैरह हो वो उसे अच्छे से पोंछ के देन वो अपना बेस मेकअप करें। बट आई ऑलवेज प्रेफर डूइंग माय बेस मेकअप फर्स्ट एंड देन आई डू माय आई मेकअप। एंड उसके लिए तो ये पैलेट बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि कुछ भी फॉल आउट नहीं हो रहा। बहुत सही लग रही है मुझे ये पैलेट एज ऑफ नाउ। ओके, बहुत प्यारी लुक लग रही है। अब मैं क्या करूंगी, लोअर लैश लाइन में ये प्यारा सा शेड विच इज नोन एज ग्रूवी, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल पीचिश कलर, इसको लेके मैं बस लोअर लैश लाइन में लगा दूंगी थोड़ा सा ये। एंड हेयर आई एम पिकिंग थोड़ा सा हाई प्रोफाइल शेड है इस पे, दोनों को मिला के मैं बहुत क्लोज क्लोज अपनी लोअर लैश लाइन में लगा दूंगी। बहुत सॉफ्ट लुक रखने के लिए मैंने सिर्फ यही दो शेड्स पिक करे एंड लगा दिया, ग्रूवी एज वेल एज थोड़ा सा हाई प्रोफाइल। लेट्स ऐड सम शिमर्स। तो मैं ये वाला जो शेड है पॉइज्ड, इसको लगाऊंगी जस्ट ऑन द सेंटर पार्ट ऑफ माय आईलिड। ओके, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शेड, देखो कितने अच्छे से रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, इसकी शाइन कितनी अच्छी है। सच अ नाइस प्रिटी शिमरी आई शैडो। ओके, इट्स वेरी प्रिटी, देखो कितने अच्छे से दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दिख कम रहा होगा, बहुत अच्छे से दिख रहा है। एंड सेंटर पार्ट ऑफ माय आईलिड में लगा रही हूँ। इट्स अ वेरी नाइस पिंक गोल्ड शेड, बहुत प्यारा लग रहा है ये पिंक गोल्ड शेड का शिमर सेंटर में। थोड़ा सा और मैं बस इसमें डैब डैब करके इसकी इंटेंसिटी बिल्ड कर लूंगी। एंड दोनों ही साइड बस मैं ब्रश को ऐसे से कर लूंगी ताकि कुछ भी हार्शनेस ना रहे। बहुत हल्के हाथों से बस हल्की हल्की सी माइल्ड ब्लेंडिंग, दैट्स इट। ओके, आई एम थिंकिंग टू ऐड दिस शेड ग्लिटर आर्ट। ये बहुत ही प्यारा सा पिंकिश पर्पल शेड लग रहा है, इसे भी हल्का सा टॉप कर देते हैं बहुत हल्के हाथों से। ओके, माय गॉड, इट लुक्स एब्सोल्युटली प्रिटी। दोनों को मिला के देखो कितना ही अच्छी सी एक शाइन आ रही है, कितना अच्छा एक क्लास इफेक्ट आ रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है दोनों को मिला के, स्पेशली तो बहुत सुंदर लग रहा है। वेरी प्रिटी, इजंट इट? जो मेरा स्मजर ब्रश था ना जिसमें मैंने फर्स्ट शेड लगाया था, मैंने कुछ भी नहीं ले रखा है, बस जो उसमें लगा था उससे ही मैं एक बारी गो थ्रू कर रही हूँ और मैं अपर लैश लाइन, ताकि सॉफ्ट सा स्मजी लाइनर लुक भी मिल जाए। एनीवेज वी आर नॉट अप्लाइंग एनी लाइनर, तो बस इससे ही हमारा लाइनर का काम भी हो जाएगा। कुछ भी शेड मैंने पिक नहीं किया है। ओके, इट्स टाइम टू डू माई इनर कॉर्नर हाईलाइटिंग। उसके लिए मैं ये ग्रे शेड पिक करके लगाऊंगी। लेट्स सी कि कैसा ट्रांसफॉर्म होता है। इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी, बट ये बहुत ज़्यादा कूल टोन हो जाएगा, तो उसे बैलेंस करने के लिए मैं ये वाला शेड जो गोल्डन शेड है उसे भी पिक करके हल्का सा लगाऊंगी। दोनों को साथ में मिला के ना अच्छा लग रहा है, देखो कितना सुंदर सा इफेक्ट आ रहा है दोनों को साथ में मिला के। इससे मैंने अपने टीयर डक को भी हाईलाइट कर लिया बहुत अच्छी तरीके से, एट द सेम टाइम मेरी आईज कितनी ज़्यादा ओपन अप लग रही है, बहुत प्यारा लग रहा है। एंड सेम शेड से ही दोनों को मिक्स करके मैं अपनी ब्राउ बोन भी हाईलाइट कर लूँगी। वेरी नाइस, बहुत सुंदर सा कितना प्यारा लुक हो गया है। बस थोड़ा सा मैं ये वाला शेड बिगरेस एंड थोड़ा सा ग्रूवी लेके दोबारा से अपनी लोअर लैश लाइन के पास लगा दूंगी, क्योंकि वहां से शेड मेरा फेड आउट हो गया था। सो आई एम अप्लाइंग दिस शेड अगेन ऑन माय लोअर लैश लाइन। अब क्या करेंगे, हेयर आई एम टेकिंग दिस शेड विच इज बिगरेस, विच इज अ पिंकिश ब्राउन शेड। उसको लेके ना बस मैं यहाँ पे ऐसे एक विंग क्रिएट कर दूँ, बस ऐसे, और उसे ना इनर की तरफ मैं स्मच भी कर दूंगी।
यहाँ पे मैं विंग क्रिएट कर रही हूँ। बहुत सॉफ्ट विंग मुझे क्रिएट करना है, मुझे बिल्कुल भी ओवर विंग इफेक्ट नहीं चाहिए। आई एम स्मर्जिंग इट टुवर्ड्स द इनसाइड। नाउ आई विल बी टेकिंग लिटिल बिट ऑफ कंसीलर ऑन द बैक ऑफ माय हैंड, थोड़ा सा लूँगी बस। फिर आई हैव टेकन अ फ्लैट ब्रश एंड उससे मैं बहुत अच्छे से अपने ब्रश को सैचुरेट कर लूँगी एंड एक्सेस भी हटा दूँगी एंड देन मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। बिल्कुल स्ट्रेट आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है एंड उसको हल्के हाथों से नीचे की तरफ ब्लेंड कर देना है, ताकि आपका आई लुक नीट एंड क्लीन लगे एंड बहुत सुंदर इफेक्ट दे। मैं ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत हल्के हाथों से इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ एंड जो आपका पिज़्ज़ा पफ है, पाउडर पफ है, उसके बाद इससे गो ओवर कर देना बस इसके ऊपर। ऑफ कोर्स अभी हाइलाइटर एंड ऑल लगाएँगे, लैशेस लगाएँगे, मस्कारा लगाएँगे, उसके बाद तो लुक और भी बहुत सुंदर लगेगा। बट इससे देखो कितना शार्प इफेक्ट आया है एंड कितना ज़्यादा अपलिफ्टेड लग रही है ये वाली आई एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो सेम मैं इस वाली आई में भी कर दूँगी एंड देन मैं पिज़्ज़ा पफ से भी गो ओवर कर दूँगी। दैट्स इट। There we go and you can see how pretty this eye look has turned out and it was very simple. आपने देखा 2-3 शेड लगाए, बस हो गया, इतना सिंपल था ये आई लुक। ओके गाइस, इट्स टाइम टू टाइटलाइन माय आईज। उसके लिए मैंने एक ब्लैक काजल लिया है। आई विल बी अप्लाइंग इट ऑन माय अपर लैश लाइन। बस अपर साइड लगा रही हूँ एंड टीयर डक्ट की साइड लगाऊंगी। बस देखो, बस इतना सा मैंने करा है। दैट्स इट। हियर आई एम अप्लाइंग फेंटी ब्यूटी मस्कारा टू कोट माय अपर एज वेल एज माय लोअर लैशेस। गाइस, ये वाला मस्कारा मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव and to be honest, I have non-existent lashes, but it coats my lashes so beautifully. It provides them volume, it lengthens them, and it doesn't make them clumpy at all. तो high end में this is my favorite mascara. And अगर मैं mid section की बात करूँ तो I love and adore L'Oreal का Panorama mascara। वो भी mascara बहुत अच्छा है। It's just that कि जब आपको remove करना होता है, थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। माइसेलर वाटर को थोड़ा सा प्रेस करना होता है अपनी लैशेस के अगेंस्ट, बट अदर देन दैट कोई इशू नहीं है उस मस्कारा के साथ। बट ये वाला बहुत आसानी से निकल जाता है, बहुत ज़्यादा, इसमें तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। आई जस्ट लव दिस मस्कारा। देखो बहुत अच्छे से मैंने अपनी अपर लैशेस को कोट कर दिया। इट्स टाइम टू कोट माय लोअर लैशेस एज वेल। लेट मी डू दैट। Guys, I'm done with my mascara. Let me apply the falsies and I'll be right back. Okay guys, you can see now I'm back with my lashes on and जो आपका लैश बैंड है ना, वो आपके इनर कॉर्नर से थोड़ा सा पीछे खत्म होता है, तो उसको बस कनेक्ट कर लिया करो। यू कैन जस्ट टेक योर स्केच लाइनर एंड उसे ना ऐसे कनेक्ट कर लिया करो, तो एक इवन इफेक्ट होता है। ये छोटे छोटे न्यूएंसेस होते हैं मेकअप के, जिससे आपका मेकअप की फिनिशिंग बहुत ज्यादा नीट लगती है। एंड बाय द वे, हियर आई एम यूजिंग NYX का Epic ink liner, which is a very beautiful sketch liner. Let me do my powder highlighting. For that, I'll be using my favorite MAC Studio Fix compact powder and the shade is NC20. And इससे ही मैं बहुत अच्छे से अपने फेस की पाउडर हाइलाइटिंग कर लूंगी। Here I'm using the same Pizza Puff and उससे बहुत अच्छे से आपको लगा लेना है। कॉन्टूर लाइंस के नीचे भी लगा लेना है, इससे आपका कॉन्टूर और शार्प दिखता है। And on my forehead is fill. Okay, that's it. थोड़ा सा अपना ब्लश भी मैं रिटच करूंगी सेम ही ब्रशर से। तो absolutely pretty and you can see ये आई लुक इस ब्लश के साथ कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। Okay, how pretty. It's time for a powder highlight. For that, I'll be using my Bobbi Brown highlighting powder and the shade is Pink Glow. ये बहुत प्यारा सा, बहुत नेचुरल हाइलाइटिंग इफेक्ट देता है। पहले तो मैं इसे अपने सेंटर ऑफ द फोरहेड पे लगाऊंगी एंड हियर आई एम यूजिंग अ न्यू हाइलाइटिंग ब्रश व्हिच इज Frosh का P06। इट्स अ स्मॉल फैन ब्रश एंड इससे आपकी प्रिसाइज हाइलाइटिंग भी हो जाएगी एंड बहुत अच्छे से आपका हाइलाइटिंग पाउडर स्कैटर भी हो जाएगा ड्यू टू इट्स स्मॉल प्रिसाइज फैन शेप। Look how pretty this highlighter is. I'll be applying it on the tip of my nose as well, just on the tip and here. Cupid's bow and बहुत कम कम मैं लगाऊंगी on my cheeks because I have a different product to apply on my cheeks today, जो मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको भी बहुत पसंद में आएगा। Just wait.
Look how pretty this highlighter is looking. Guys, one more thing, अगर आप चाहते हो कि आपकी आईज और भी ज़्यादा शार्प लगे एंड और भी अपलिफ्टेड लगे, तो हाइलाइटिंग पाउडर ना थोड़ा-सा लेके यहाँ पे भी लगा लेना। इससे भी काफ़ी लिफ्टेड अप लुक आता है। गाइस, मैंने अपनी चीक्स में ऐड करा है रेवोल्यूशन का ये बाम हाइलाइटर एंड द शेड इज़ बेयर पिंक। ये बिल्कुल एक लिप बाम जैसा लगता है, बट इसको लगाने के बाद देखो क्या वेट वेट टाइप का ग्लो मिलता है। इट्स जस्ट दैट कि इसके बाद ना आपके बाल चिपकने लगते हैं, जैसे किसी भी बाम में चिपकेंगे। एंड जो उसका लुक आता है ना, वो बहुत सुंदर लाता है। जस्ट लाइक कि सेलिब्रिटीज़ का लुक आता है ना, बिल्कुल उसी की तरीके से आता है। एंड यू हैव टू गो वेरी लाइट हैंडेड विद दिस प्रोडक्ट, अदरवाइज़ आपका जो बेस है ना, उसको मूव कर देगा एंड ब्रेक कर देगा। बहुत हल्के-हल्के हाथों से लगाना। एंड उसके बाद तो देखो यार क्या ही फिनिश लग रही है, कितना सुंदर लग रहा है, कितना ग्लोई एंड ड्यूई मेरा फेस लग रहा है। ओके गाइस, इट्स टाइम टू डू द लिपर एंड फॉर दैट आई विल बी यूजिंग अ लिप लाइनर। दिस वन इज फ्रॉम द ब्रांड मैरी जो के। ये द गेम ऑफ मेकअप वाली सारा है, उन्होंने रिकमेंड किया था। द शेड इज टोक्यो ब्राउन एंड मैंने मैरी जो की ऑफिशियल वेबसाइट से ये खरीदा है। दिस इज अ गुड अफोर्डेबल लिप लाइनर, बट अगर आपको इतना हैसल नहीं लेना, इतना नहीं खरीदना, देन यू कैन कंसिडर गेटिंग स्विस ब्यूटी और मास्क लिप लाइनर। दे आर इक्वली गुड। जबकि मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे वो लिप लाइनर ज़्यादा अच्छे लगे एज कम्पेयर टू दिस वन। दिस वन इज ऑल्सो वेरी गुड, बट वो दोनों लिप लाइनर्स लाइक मार्स एंड स्विस ब्यूटी के ज़्यादा अच्छे हैं। इससे मैं अच्छे से अपने लिप्स की लिप लाइनिंग कर लूँगी। Okay, now here I'm using the Parul Garg lipstick. The shade is Cupid and it's a very beautiful pink shade. बहुत सुंदर लगेगा। ये पारुल गर्ग की ना वैलेंटाइन एडिशन लिपस्टिक थी एंड इसमें एक छोटा सा हार्ट भी है। थोड़ा सा लगाना इससे थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है, बट मैंने उसका उसका भी हार्ट देख लिया। जो उसकी ये चोचे है ना जो निकली हुई है हार्ट की, आप उससे अपनी लिप लाइनर की लाइनिंग कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ। देखो कितना अच्छा लग रहा है, बट मुझे थोड़ा सा म्यूटेड लिपर चाहिए, तो मैं इसे कंबाइन कर रही हूँ विद द शेड नेम किस। ये एक फीचर शेड है, यू कैन सी। इसको भी मैं इस पे लगा रही हूँ ताकि कस्टम शेड मिल जाए। लिपर इज लुकिंग गुड, बट मुझे थोड़ा सा अब भी ज़्यादा लग रहा है, तो पहले मैं एक टिश्यू ले रही हूँ ताकि जो उसकी ग्लॉसीनेस है वो हट जाए। हियर आई एम टेकिंग द शेड एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स का शेड प्योर हॉलीवुड एंड इसको मैं बस सेंटर पे लगाऊंगी। ये बहुत ही कूल टोन कलर है, इसे बस सेंटर में लगाऊंगी ताकि लिपर थोड़ा सा लाइट हो जाए एंड अपनी फिंगर से ही स्मच कर लूँ। जस्ट अ लिटिल बिट मोर। इट्स अ कूल टोन लाइट ब्राउन शेड। देयर यू गो। देखो कितना प्यारा लग रहा है ये लिपर, अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेट मी क्विकली चेंज एंड आई विल बी राइट बैक। Okay guys, I'm back and this is how my full face with makeup is looking. It's looking absolutely pretty. And guys, I've changed my lipper. I'm wearing Maybelline Ink Vinyl Lipstick in the shade Peachy. ये थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है तो मेरे लिप्स थोड़े चिपक रहे हैं, बट अदर देन दैट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शेड। आप देखो कितना अच्छा मेरा पूरा लुक टर्न आउट हुआ है। This type of makeup is just perfect if you want to carry it on your freshers, farewell, as a bridesmaid, on special occasion if you are a fan of soft Indian makeup look. This makeup is so easy and it turned out so pretty. And you can see the highlighter, it's glowing and how, and the base makeup is giving. It's looking so divine. All thanks to this Anastasia Beverly Hills foundation. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन है। It's my new favorite and especially इस समर्स में आप मुझे बहुत ज़्यादा इसे यूज़ करते हुए देखोगे। It has all the pros. बस एक ही इसका कौन है कि ऑक्सीडाइज होता है, but that also you can make it work, जो मैंने पूरी वीडियो में आपको समझाया भी है। And इससे बहुत अच्छी सी आपको सॉफ्ट मैट इफेक्ट आती है। It's very long lasting. It's blurring on the face and yes, it looks like almost your second skin. It has a medium to full coverage एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ये फाउंडेशन ब्लेंड भी हो जाती है, बहुत सीमलेस लगती है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। आई एम इन लव विद दिस फाउंडेशन। अगर आप पूछोगे कि इफ आई हैव टू पिक वन फाउंडेशन बिटवीन नार्स, Charlotte Tilbury and this one, तो मैं कौन सी पिक करूंगी? At this point of time, I'll pick this one because this one Charlotte Tilbury plus soft matte finish plus blurring effect, तो इसमें सीटी वाली आपको सारे
क्वालिटीज भी मिल जाएंगी, प्लस एडेड 2 क्वालिटी भी मिल जाएंगी, जिससे आपका बेस मेकअप और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। सो आई होप आज का रिव्यू एंड मेकअप ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। इन केस आया है तो गिव इट अ ह्यूज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल गौरी स्टाइल्स. Hit that bell notification next to the subscribe button so you get notified every time I post a new video. Till then, bye bye, take care, God bless you all, keep smiling, keep doing makeup and enjoy some beauty shots.